गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय रंग, जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद, हरि बोल हरि बोल। वंदे हम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वेतांशिका अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं तमाम शिरसा नमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी कृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
गौर भक्त वृंदा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णियों के चरणों में मेरा हृदय से यथाजत दंडवत प्रणाम। हमारे प्रभु जी ब्रिस्बेन से गोल्ड कोस्ट आ गए। आई थिंक दैट Prabhuji, he is shifted from Brisbane to Gold Coast. This world is very close to Golok. So he has dragged towards Golok from Brisbane. It is nice. Gold Coast. If we put K to Gol, then Golok, it becomes Golok. And that is the purpose of our life. Gold Coast. And I am very pleased to see that this is Triveni Sangam, Gold Coast, today here in this house. I don't know, did you give any name to this house? Abhi nahi diya. He has come in this house. There is 3 rivers coming. One is coming from Brisbane, one is coming from Murvi Lamba, and one itself in Gold Coast. So it is Sangam, Prayagraj. Some are Hindi speaking, some are English speaking. That remind me our Akhilesh Prabhu. He has come here. He was a very great translator. He used to speak in Hindi and he used to translate. But Gold Coast attracted him here. When I come to these places, walking ashore, I say at the beach, or another day Prabhuji took me in Brisbane also, center city. I don't find any attraction, but lot of distraction. Understand? I did not find attraction, but lot of distraction. And really this is Maya. How can we concentrate ourselves without getting distraction? It is not enough that we don't get attraction, we should not get any distraction also. And I am also very much confused right now, what should I speak? In Brisbane, I was speaking on Roop Shiksha.
And to my great pleasure, I would like to say, I have given many classes, many places, but these 4-5 classes in Brisbane were one of the best, based on Roop Shiksha. Not that I gave good classes, but they were very good listeners. They were very good listeners. And I spoke. Fortunately, I spoke in Hindi. Why fortunately? Because then I became more mobile in speaking, more communicable in speaking. क्या चीज? ट्रांसलेट कर रहे हैं। Ramchandra Prabhu said that I was a very good translator. He forgot to mention that he was the original translator. He gave me the translator. He gave me the microphone one day that he translated. Because I can speak little bit English, so I am not daring to give mic to him for translation. That I will speak in Hindi and he will translate. How can we translate? Huh? I'll translate, Prabhu. You will? Yes, sir. Simultaneously. Yes, simultaneously. Simultaneously. Huh? We are confusing. What did you guys sit down outside? The whole chair. Shaki was before, but he said that Sit on the Maharaj, and then they were speaking. कितने लोग हैं? There are many people. How can you translate? In India, he used to translate on wireless. Everyone was wearing headphone. Then it was easy. If there is 1 or 2 person, he can do it. But there are many now. So it is difficult. When you speak something Hindi and when you translate English, you can sit next to you. There are 3-4 people, and I can sit at the I back. can sit at back. I can sit back and आप बोलते रहो मैं करता रहूँगा. बोलो जी, are you ready? ठीक है. हैं? Alright. इससे आपका हरिकथा स्मूथ चलता रहेगा. Flow there. Okay. बाकी ये ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है. नहीं, ये 2 बैठे यहाँ, ये 2 यहाँ बैठे यहाँ. कहाँ रखोगे? जाओ भाई. You can Hindi जानता है. ये कहाँ से हिंदी जानता है? जानता है? फंस जाएगा. वो बेचारे कुर्सी पे बैठे हैं, क्यों उनको उठा रहे हो? छोड़ो. They are sitting on chair. They are chair person. You are making them chairless. गुरुदेव की हरे कृष्णा. अब बोलिए गुरुदेव की महिमा कुछ बताएं. गुरुदेव की महिमा कुछ बताएं. वो सुनाओ. यहाँ पर जो गोल्कोस पे जो आए ये सब तो फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, जो हम करना कर रहे हैं. आपको पोएम सुना देना. हैं? देखो, 18 तारीख को संडे को आने वाले रविवार को हमारे गुरुदेव का आविर्भाव तिथि है. और उसी सिलसिले में मैं मुरबी लंबा जा रहा हूँ.
और मैंने ये कहा भी था कि गोल्ड कोस्ट में गुरुदेव के बारे में बोलूंगा मैं। तो इसलिए मैं अपने कुछ बातें गुरुदेव के साथ अपने कनेक्शन और कुछ उनके लिए मैंने कविताएं लिखी थी, तो वो मैं थोड़ी सी आप लोगों को सुनाऊंगा। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ट्रांसलेटर मिल गया, तो मैं हिंदी में अब कविताएं आसानी से सुना सकता हूँ। तो आप लोग तैयार हो जाइए। दुनिया में कोई आदमी कविता नहीं सुनना चाहता। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे इस तरह की बातें मौजूद हैं। एक आदमी भाग रहा था दूसरे के पीछे, पूछा गया तो क्यों भाग रहा है? बोलता है उसने मुझे अपनी कविता सुना दी, मेरी नहीं सुन रहा है। उसने मुझे अपनी कविता सुना दी लेकिन मेरी नहीं सुन रहा है। तो मैं अपने जीवन की कुछ बातें बतलाना चाहूंगा गुरुदेव से मिलने से पहले। और एक कविता जो गुरुदेव के से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करती है, लेकिन गुरुदेव से मुझे शिक्षा क्या मिली वो मैं सुनाना चाहूंगा। मेरी डायरी तो मेरे पास है लेकिन ढूंढना पड़ेगा। आज मैं रोऊं भर भर आंसू। प्रभु जी मेरी कविता का ट्रांसलेशन करेंगे, कविता में ही कर देना तो अच्छी बात है। आज मैं रोऊं भर भर आंसू, मेरी गुरु से बात हुई है। आज मैं रोऊं भर भर आंसू, मेरी गुरु से बात हुई है। मुझ सोते को खूब चिताया जैसे ही मुलाकात हुई है। मुझ सोते को खूब चिताया जैसे ही मुलाकात हुई है। मुझको गुरु ने यह बतलाया जीना क्यों कर रास ना आया। ये उर्दू शब्द है, यानी मैं क्यों जिंदगी में सुख नहीं ले पा रहा। मुझको, क्योंकि आप लोगों की फीजी हिंदी है ना, मेरी दिल्ली वाली हिंदी है। कई लोगों की तो जो दिल्ली वाले हैं वो तो समझ जाएंगे। मुझको गुरु ने यह बतलाया कि जीना क्यों कर रास ना आया। रास ना आया मतलब सूट नहीं किया लाइफ मुझको। क्या जीना इसको कहते हैं बेपरवाह जिसमें जीते हैं। क्या जीना इसको कहते हैं बेपरवाह जिसमें जीते हैं। कैसे बेपरवाह होता है आदमी? ऐश परस्ती और आराम। हम इस चीज में जिंदगी बिताएं तो बेपरवाह, यानी बिना किसी केयर के। ऐश परस्ती और आराम, कीर्ति कंचन जाम और काम। कीर्ति नेम फेम, कंचन पैसा, जाम और काम शराब पियो और भोग करो।
रुग्ण दीन और जीर्ण बनकर मर मर के हम जीते हैं। क्या हो गए? रुग्ण, रोगी हो गए ना। दीन और जीर्ण बनकर कैसे जी रहे हैं? सोच रहे हैं, ऐश परस्ती कर रहे हैं, लेकिन मर मर के हम जीते हैं। रुग्ण दीन और जीर्ण बनकर मर मर के हम जीते हैं। जख्म सैकड़ों दिल पे खाकर, दिल पे बहुत जख्म पड़ते हैं, और तो कुछ नहीं, अपने घर वाले ही दे देते हैं। जख्म सैकड़ों दिल पर खाकर फिर क्या करते हैं? जख्मों से ही सीते हैं, जख्मों को जख्मों से सीते हैं। जख्म सैकड़ों दिल पर खाकर जख्मों से ही सीते हैं। किस मकसद से हम जीते हैं? बस खाते हैं और पीते। किस मकसद से हम जीते हैं? बस खाते हैं और पीते हैं। इस जिरहबाजी में, जिरहबाजी मैंने डिस्कशन, इस जिरहबाजी में खूब करारी मात हुई है। आज मैं रोऊं भर भर आंसू, मेरी गुरु से बात हुई है। जिस जिसको मैंने मिटते देखा, संसार में कौन क्या क्या चीज मिट रही है? तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो मिटती ना हो। जिस जिसको मैंने मिटते देखा, फटते देखा, मरते देखा, पल पल छिण छिण घटते देखा, उस विनाशशाली तत्वों की ख्वाहिश इस मन में लो, मैं अपनी राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा हूं। इस विनाशशील तत्वों की ख्वाहिश इस मन में कामयाब करते देखा। इस बेहूदी हसरतों से जिंदगी बर्बाद हुई है। आज मैं रहूं भर भर आंसू, मेरी गुरु से बात हुई है। क्या कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं? गैरों का में चाकर बनकर, नौकरी करते हैं ना, गैरों का में, गैर मैंने दूसरे लोग, गैरों का में चाकर बनकर, शौफर बनकर, हॉकर बनकर, अपने अरमानों के खातिर खुद गर्जों का नौकर बनकर, चंचल चपल सुख के खातिर बेगानों का चमचा बनकर, करछी बनकर, गागर बनकर, काम वासना की चाहत में हड्डी मांस की झांझर बनकर, कुकर बनकर, सूकर वाली जिंदगी जीता आया काफिर बनकर। देखो कैसी खौफनाक सच्चाई पर्दा फाश हुई है। आज मैं रहूं भर भर आंसू, मेरी मुझसे बात हुई है। समझ आ रहे हैं? ये मैंने बहुत सारी बातें बोल दी एक साथ, ये जिंदगी की, लेकिन ये ट्रांसलेशन नहीं हुई, मैं इसलिए फिर पढ़ के सुना रहा हूं। बोलूं? सुनो। बेगानों का चमचा बनकर, करछी बनकर, गागर बनकर, काम वासना की चाहत में हड्डी मांस की झांझर बनकर, कुकर सूकर वाली जिंदगी जीता आया काफिर बनकर। देखो कैसी खौफनाक सच्चाई पर्दा फाश हुई है। आज मैं रोऊं भर भर आंसू, मेरी मुझसे बात हुई है। मैं गुरु कृपा से चेत आया, गुरु से बात हुई ना। अब ये मीनिंग सन्नम बन्नम। मैं गुरु कृपा से चेत आया, मैं भूला भटका लौट आया। गुरु से मैंने जान लिया, मैं चेतन तत्व अविनाशी हूं, मैं कृष्ण देश का वासी हूं। गुरु से मैंने जान लिया, मैं चेतन तत्व अविनाशी हूं, मैं कृष्ण देश का वासी हूं। कृष्ण चरणों का नौकर चाकर, शौफर हाकर गागर झांझर।
अब मैं किसका बन गया नौकर? कृष्ण चरणों का। कृष्ण चरणों का नौकर चाकर, शौफर हाकर, गागर झांझर। मेरी हस्ती माया दास से रामचंद्र दास हुई है। मेरी हस्ती माया दास से रामचंद्र दास हुई है। आज मैं रोऊं भर भर आंसू, मेरी गुरु से बात हुई है। ठीक है, ये एक पीस आपको सुनाया है। एक बड़ी कड़वी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, फिर अपने जीवन की बातें धीरे धीरे बताऊंगा। अभी गुरु से मिलने की पहले कुछ कुछ बतलाऊंगा मैं, जो गुरु से बहुत मिले। तो संडे वाले दिन, रविवार को अंग्रेजी में बोलूंगा वहां, तो मैं वहां ट्रांसलेशन नहीं करवाऊंगा। कहाँ पे? मुरवी लंबा में। वो भाई अंग्रेजी का स्थान है। क्यों जी? वहां इंग्लिश में बोलूंगा मैं। भारतवर्ष में काफी समय तक मुसलमानों का राज्य रहा। मुसलमान लोग बड़े अत्याचारी होते थे, बहुत क्रूर होते थे। तो उस समय की एक सच्ची घटना मैंने पढ़ी थी, वो मैं कई बार सुना देता हूं। क्या थी वो घटना? कि एक राजा, गर्मियों में उस समय एसी तो होते नहीं थे, तो राजा छत पे जाके सोते थे, अपने महल की छत पे सोते थे। अब आप लोगों को याद है कि नहीं, हम भी छत पे ही सोते थे। तब पंखे भी नहीं होते थे, और हाथ का पंखा लेके ऐसे ऐसे करते थे और छत पे सोते थे। बहुत गर्मी लगती थी तो बिस्तर पे पानी छिड़क देते थे। फिजी में ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर हमारे इंडिया में होता था, है नहीं? क्या था? नई पीढ़ी के लोग ये नहीं जानते हैं। गायत्री ने भी ऐसा नहीं किया होगा। मथुरा में मैं रहता था, तो वो राजा गर्मियों में अपनी पत्नी को कहता है कि छत पे मेरा बिस्तर लगवा दो। तो पत्नी एक नौकरानी को, जो लड़की थी मुश्किल से 14-15 साल की, हिंदू थी, कनीश जाओ इसका चारपाई लेके छत पे और बिस्तर लगाओ, बीवी ने बोला राजा को। तो बेचारी राजा का चारपाई लेके 2 मंजिला छत पे गई, बिछाया, सब कुछ किया। सुबह 4 बजे से उठ के काम करती थी। उसने बिस्तर बिछाया राजा का, बड़ा अच्छा बिस्तर बिछा, मसलन वगैरह, उसके तकिए भी गोल गोल बड़े सफेद कोमल। उसने ऐसे चादर बिछाई और हाथ ऐसे किया और मुंह नीचे किया। सुबह की थकी हुई थी, उसको नींद आ गई। उस बिस्तर पे उसको नींद आ गई। इतने में जी राजा छत पे चढ़ के आ गया, और जब देखा कि नौकरानी उसके बिस्तर पे सो गई है, तो उसको बड़ा गुस्सा आया, कनीश करके चिल्लाया वो। और उधर बीवी को बुलाया, बेगम देखो तुम्हारी बदतमीज कनीश ने क्या किया, मेरे बिस्तर पे सो गई। अब बेगम और ज्यादा क्रूर, कितने मिनट सोई, हिसाब लगाओ। तो हिसाब लगाया, जब उसने कहा था बिछाने जाओ, और उसके बाद 20 मिनट हो गए थे। 20 मिनट ये सोई है, इसको 20 कोड़े मारो पीठ में, इसको 20 कोड़े मारो। अब जब कोड़े लग रहे थे वो चिल्ला रही थी, पर जब कोड़े 15-16 हुए तो वो चुप हो गई। जब 17-18 तो वो थोड़ी थोड़ी मुस्कुराने लगी,
और जब 20 कोड़े हो गए तो वो थोड़ी सी और ज्यादा मुस्कुराई और कहती है, राजा अब मैं काम नहीं करूंगी, मैं जा रही हूं, हंसते हुए। राजा ने कहा, इधर आ, इधर आ, तू हंस क्यों रही है, तू मुस्कुरा क्यों रही, तेरे को कोड़े पड़ रहे हैं और तू मुस्कुरा रही है और हंस रही। तो कनिष्ठ बोलती है, महाराज मैं अपने धर्म को याद करके हंस रही हूं। हिंदू थी ना, मैं अपने धर्म को याद करके हंस रही हूं। बोलते क्या, तेरा धर्म क्या कहता है? बोलता है, मेरा धर्म ये कहता है कि दुनिया में हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है, हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। जो जितना ज्यादा सुख भोगता है उतने ही ज्यादा उसे कष्ट मिलते हैं। यह हमारा धर्म कहता है, हिंदू धर्म कहता है। गीता में भगवान कह रहे हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते। जो इंद्रियों के भोग हैं वही दुख बन जाते हैं। यही संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्श मीन्स टच से जो सुख मिलते हैं वो भोग बन जाते हैं। तो कनिष्ठ कहती है, जब मेरे को कोड़े लग रहे थे तो मैं सोच रही थी, राजा को बोलती है, आप क्या कहोगे, क्या करोगे, देख लेना। मैं सुबह 4 बजे की उठी और मैं मशीन की तरह काम कर रही हूं, पर किसी को इसका इल्म नहीं है। मैं अब तक थक के चूर हो गई हूं। मैंने अपने हिसाब से बड़ा सुंदर बिस्तर बिछाया, मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। तो मैं सोच रही हूं कि ये छत के ऊपर बिछा हुआ बिस्तर जिस पर मैं 20 मिनट सोई, मुझे 20 कोड़े पड़े, कर्मों का फल जो इस पे रात भर सोएगा उसको कितने पड़े, जो इस पे रात भर सोएगा उसको कितने पड़ेंगे। ये अलग बात है कि कब पढ़ेंगे, ये अलग बात है कि कब पढ़ेंगे। तो ये कहानी सच्ची कहानी है, लेकिन मैं इसलिए सुनाता हूं कि हमको अपने जीवन में किस तरह से भक्ति में आने के लिए कुछ चीजें छोड़नी है और कुछ चीजें पकड़नी है। मैं 3 साल की उम्र का था तो मेरे पिताजी मथुरा शिफ्ट कर गए और मथुरा में रहने लगे। कंट्रास्ट देखो कितना। जब मैं पैदा हुआ था वो बॉम्बे चले गए थे हीरो बनने के लिए, लेकिन हीरो बने नहीं तो बॉम्बे की चकाचौंध में रहकर उन्होंने कहा कि यहाँ रहने की बजाय एक हल्के जगह में रहो जहाँ चकाचौंध ना हो पर आदमी सुख से रहे। तो बॉम्बे को छोड़ के उन्होंने क्या सिलेक्ट किया, मथुरा टाउन सिलेक्ट किया, मथुरा में रहने लगे। मैं भी मथुरा आ गया, 3 साल का था मैं मथुरा में आ गया। मथुरा में उन्होंने जो घर लिया वो उस जगह था जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से मुश्किल से 1 फरलांग दूर होगा। आप बोलोगे ये 1 फरलांग कितना होता है? तो जिन्होंने पुराने जमाने में इंडियन स्टडीज की हैं वो फरलांग और माइल जानते हैं। 8 फरलांग का 1 मील होता है, तो 1 मील को 8 हिस्से कर लो तो क्या हो गया, 1 फरलांग। या यूं समझ लो 100 मीटर, 100-150 मीटर कृष्ण जन्मभूमि दूर थी, ज्यादा दूर नहीं थी। तो हमारे पिताजी रोज शाम को हम लोग 6-6:30 बजे नाश्ता कर लेते थे, गर्मियों में विशेषकर। तो रोज शाम को घूमने के लिए कृष्ण जन्मभूमि जाते थे।
इसलिए नहीं कि पिताजी बड़े महान भक्त थे, वो अच्छे खासे नास्तिक थे। एक तो होता है ना नास्तिक, और वो कैसे नास्तिक थे? अच्छे खासे नास्तिक थे। हम सब कृष्ण जन्मभूमि जाया करते थे, तो पिताजी जहाँ पे ऑफिस था, कोई ना कोई संत महात्मा बैठा होता था, वहां ऑफिस में जाकर बैठकर बहस करते थे कि भगवान नहीं है। तो वो उन लोगों के संग क्या बहस करते थे? भगवान नहीं है। लेकिन मैं मंदिर में जाता था। उस समय कृष्ण जन्मभूमि बहुत छोटा सा मंदिर था, एक खाली मंदिर था, और उसमें केशव देव जी, भगवान का नाम क्या है? केशव देव। आप कभी मथुरा जाएं, देखेंगे बहुत सुंदर प्यारी क्यूट डीटी है, बड़ी क्यूट सी डीटी है। हाँ, तो मैं उसको देखता था, प्रणाम करता था, परिक्रमा लेता था, चरणामृत लेता था। मेरी माँ भी ये करती थी, लेकिन पिताजी कभी नहीं गए मंदिर में। कृष्ण जन्मभूमि जाते थे, पर कहाँ नहीं जाते थे? मंदिर नहीं जाते थे। तो मैं उसे कनेक्ट कर रहा हूं कि मैं मथुरा में रहता था, और मथुरा में ही गुरुदेव का मठ था, श्री केशव जी गौड़िया मठ। वो मेरे घर से काफी दूर था, 4-5 किलोमीटर दूर था। उस जगह हम तो कभी गए नहीं, जाते नहीं थे। लेकिन गुरुदेव ने उस मठ की स्थापना 1954 में की थी। उनके गुरुदेव ने की, बल्कि परम गुरुदेव जी ने। और 1954 में मेरा जन्म हुआ, दिल्ली में हुआ। तो गुरुदेव 1954 में मेरे लिए मथुरा आ गए। मैं ऐसा समझता हूं, मेरी ऐसी मान्यता है। मैं 57 में आया, 3 साल बाद आया, पैदा होने के बाद। उनको नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम रिमोट कंट्रोल मेरा किस पे चल रहा था, पर कृष्ण जन्मभूमि डेली जाता था शाम को, और जाकर वहां पे खेलना। गार्डन था, बड़ा प्यारा सा, घास बिछी होती थी, उस पे कलाबाजियां खाना, लेकिन अंदर मंदिर में जाना, ठाकुर जी के दर्शन करना। तो कृष्ण के जहां दर्शन थे ना, बिल्कुल उनके दर्शन के सामने दीवार पे कई सारी फोटोएं थी, उसमें चैतन्य महाप्रभु की भी फोटो थी। अभी भी आप देख सकते हो। पुराने मंदिर में जाओ, केशव देव जी के मंदिर में। तो मैं ये सोचता हूं कि मेरी सुकृतियां हो रही थी। कल परसों में कहीं कथा बता रहा था, भगवान का रूप और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो दर्शन करना, भगवान के मंदिर में जाना एक बहुत बड़ी सुकृति होती है। इसलिए आप अपने घरों में मंदिर बनाओ, और आप बनाते हो, जितने भी वैष्णव हैं, नहा धो के हम सब एक काम करते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं। और फिर चरणामृत भी लेता था मैं। वही आज भी उस चरणामृत का टेस्ट आता है, मीठा मीठा टेस्ट। और परिक्रमा भी लगाता था, छोटा सा मंदिर था, परिक्रमा लगाता था। फिर मैं थोड़ा बड़ा हो गया। जब बड़ा हुआ तो हिंदी पढ़ता था, हिंदी में मुझे कुछ शौक था। तो बिहारी जी के दोहे, रहीमदास जी के दोहे, कबीरदास जी के दोहे, वो हमें पढ़ाए जाते थे, और बड़ी उसमें सार्थकता थी। ये सारे दोहे हम रट लेते थे, हमारे को एक्सप्लेन करने पड़ते थे हिंदी सब्जेक्ट में। तो जब गर्मियों की छुट्टी होती थी, तो मैं अकेला, बड़ा हो गया ना थोड़ा सा, 7वीं 8वीं क्लास में होऊंगा, मैं अकेला फिर कृष्ण जन्मभूमि चला जाता था। और कृष्ण जन्मभूमि में वहां पर कुछ सेठ लोग, भक्त सेठ, पैसे वाले पर भक्त, कीर्तन किया करते थे बाहर से आके।
गार्डन में बैठ के कीर्तन करते थे। जब वो कीर्तन करते थे तो मुझे कीर्तन में तो इतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कीर्तन के बाद हर एक सेठ कोई ना कोई श्लोक, कोई ना कोई चीज बोलता था, तो मैं वहां बैठ जाता था। किसी दिन कबीर जी का दोहा सुना दिया, किसी दिन रहीम जी का दोहा सुना दिया, तो बड़ी वाहवाही होती थी। कई दिनों तक ये सिलसिला चला। मैं ये सोचता हूं कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा था कि मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूरी पे एक मठ था, उसका नाम था केशव जी गौड़िया मठ, और उसमें अधिकतर गुरुदेव आके रहते थे। परम गुरुदेव भी रहते थे उस पर, कुछ साल रहे, आए हैं, ठहरे हैं, वहां रहे हैं। मेरी प्रिपरेशन उसमें चल रही थी। उसी मथुरा में रहकर मैंने एमएससी फिजिक्स की। बड़ा हो गया, फिर कृष्ण जन्मभूमि जाना कम हो गया। छोटे में अज्ञात सुकृतियां बहुत हो गई, और उसके बाद एमएससी फिजिक्स करके मैं बड़ा पछताया। क्यों? 1974 में फिजिक्स में मैंने एमएससी की। उस समय भारतवर्ष की स्थिति अच्छी नहीं थी, नौकरियों की भी अच्छी नहीं थी, और जॉब की भी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो मेरे दादाजी और दादी जी दिल्ली में रहते थे, और हम अपने माता पिता के साथ 4 भाई बहन मथुरा में रहते थे। मेरे दादा दादी जी से मेरे पिताजी की बनती नहीं थी। तो मेरे पिताजी कहते थे, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने बाप की देखभाल करूं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मेरी उनसे बनती नहीं है। तो मुझको बोलते थे हंसी में, बेटा तू चला जा उनके पास, मेरी रिप्रेजेंट कर, उनकी देखभाल कर, उनकी प्रॉपर्टी भी ले ले। थोड़ी सी एक मकान था। वो मजाक करते थे, लेकिन मुझे नौकरी लेने के लिए दिल्ली उनके पास जाना पड़ गया। एमएससी की कोई वैल्यू नहीं थी उस समय, उस ही की वैल्यू थी जो पीएचडी करे, और 5-6 साल लगते थे पीएचडी करने में फिजिक्स में। मैं ये आपको सुना रहा हूं, दिस होल थिंग मेक्स सम सेंस, आप ध्यान से सुनना। तो मेरे दादाजी अपनी एक फाइनेंस कंपनी थी एमजीएफ, खरबोपति था वो आदमी, वेद प्रकाश गुप्ता उसका नाम था। उसके पास ले गए कि ये मेरा पोता है, ये मथुरा से आया है, ये मेरी देखभाल करेगा, इसे नौकरी दे दो। वो बहुत पैसे वाला था। मेरे दादाजी उसके यहाँ पहले काम किया करते थे, रिटायर्ड हो गए थे। बोलता है देता हूं। उसने कहा मैं दिलवाऊंगा नौकरी। तो मैंने सोचा कि उसकी फाइनेंस कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में उसकी कंपनी थी, अपनी कंपनी में रख लेगा, कलर के लगा देगा। पर उसने अपनी कंपनी में रखने की बजाय मेरी मुलाकात न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी वाले उसके एरिया मैनेजर से करा दी कि आप इसको अपनी कंपनी में रख लीजिए। गवर्नमेंट की थी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो थी वो गवर्नमेंट की थी। तो उसका जो एरिया मैनेजर था, एसएस मेहता नाम था, बोलता है क्लर्क की नौकरी चाहिए तो मैं अभी दे देता हूँ, इट इज ऑन प्लेट, टेक इट।
और अगर थोड़ा ऊंची नौकरी चाहिए डेवलपमेंट ऑफिसर की, तो मैं एप्लीकेशन दे देता हूँ, 15-20 दिन में हो जाएगी। तो मैंने कहा कि दोनों में अंतर क्या है? फिजिक्स का बंदा इंश्योरेंस में फंस रहा हूं और इंश्योरेंस मुझे आती नहीं है। बोलता है क्लर्क के काम में बैठ के करना पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफिसर में घूम के करना पड़ेगा। तो मेरे को अभी भी ये प्रॉब्लम है, बैठ जाता हूं तो नींद आ जाती है। मैंने कहा नहीं, घूमने फिरने वाला काम अच्छा है, बैठने वाला ठीक नहीं है। अब कितनी तनख्वाह क्या है ये कुछ नहीं मालूम मुझको, लेकिन अपने हिसाब से घूमने फिरने वाला। मैं कृष्ण की भक्ति करता था अनजाने में, लेकिन इस स्टेज पे पहुंचकर एमएससी फिजिक्स करके नास्तिक हो गया। कोई भगवान नहीं है, सब ऐसे ही है, ऐसा मानता था। कोई भगवान नहीं है, बिल्कुल नास्तिक हो गया। अब मैंने वो नौकरी अप्लाई करा दी घूमने वाली। हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, 3 हफ्ता बीता, 1 महीना बीता, नौकरी नहीं आई। वो जो एसएस मेहता जी एरिया मैनेजर थे वो रिटायर हो गए, फिर वैष्णो देवी के नवरात्रे आते हैं ना, वैष्णो देवी के नवरात्रे आए तो मेरे घर के बिल्कुल पास में एक लड़का था, उसके ऊपर देवी आती थी, उसे चौकी कहते हैं। तो मेरी दादी जी ने कहा तो उसके पास चला जा नौकरी के लिए। मैंने कहा मैं तो नास्तिक हूं, मैं वहां नहीं जाता। बोलती है नहीं चला जा। मैं गया, इसे कहते हैं मरता क्या ना करता। मैं गया, अंदर से डरता हुआ गया। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो वो लड़का था, यंग बॉय था, मेरी ही उम्र के करीब का था, उसे ऐसे ऐसे कर रहा था। माँ उसके ऊपर आई हुई थी और एक महिला बोलती है कि मेरा बेटा आपके पास नहीं आया, आप उस पर रुष्ट मत होना, उसने मेरा अपमान किया है। वो गुस्से में बोल रही है और उसने त्रिशूल उठा लिया, वहां त्रिशूल पड़ा था, उसको हम वो नचाएंगे देख लेना। नहीं 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 नहीं, मेरे बेटे को ऐसे नहीं करना। मैंने कहा उसके लिए तो इसने त्रिशूल उठा लिया, मेरे को तो मार ही देगा। मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो पूरा नास्तिक हूँ। तो जब किस्सा शांत हुआ तो उसने ना फल फेंकने शुरू कर दिए। तो पहला फल मेरी गोदी में आके गिरा। मैं एकदम दूर दरवाजे पे बैठा हुआ था। तो सबने कहा बड़े लकी हो, पहला फल मिल गया तुमको। मैंने कहा मैं और लकी, मैं तो नास्तिक हूं। अब वो झूले ऐसे ऐसे झूल रही थी, कोई नौकरी वाला है तो आए। पहला ये सेंटेंस उसने ये कहा, नौकरी वाला आए। अब नौकरी वाला तो मैं ही था। मैं गया उसके पास, उसने फिर एक फल उठाया और मेरी गोदी में ऐसे करके डाला और बोलती है 48 दिन में। देवी बोली 48 दिन में। अब जब मैं इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई हो गया मेरा, तो मैं रोज वहां जाया करता था ऑफिस। एम्प्लॉय नहीं था, फिर भी मैं जाके काम करता था थोड़ा बहुत। तो मैं जब वहां गया तो उसके बाद फिर 1 महीना बीत गया। माता ने 48 दिन कहे थे, वो भी मैं लगभग भूल गए। 1 महीना और बीत गया, पर मैं काम कर रहा हूं, बिना सैलरी के काम कर रहा हूं। तो इतने में एक कॉल आई कि आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए बॉम्बे बुलाया है। तो मैंने
मैंने कहा देखो कितना लटका रहे हैं, अब फाइनल इंटरव्यू और क्या होगा। एसएस मेहता साहब तो चले गए, पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। चला गया मैं ये सब इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इसी को मैं गुरुदेव के संग कनेक्ट करता हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ उसके संग कनेक्ट करता हूँ। पैसे मेरे पास होते नहीं थे, आने जाने की टिकट कंपनी ने दी थी इंटरव्यू के लिए, रहने का स्थान भी वो वहां दे रहे थे इंटरव्यू के लिए। मेरे पॉकेट में सिर्फ 150 रुपया था। पुरानी बात है, 1976 समझ लो। कितना था? 150 रुपया था मेरे पास। अब मैं ट्रेन में बैठा, ट्रेन में मेरे 3-4 लड़के दोस्त बन गए, बड़े अच्छे दोस्त बन गए। उनका आओ चलो ताश खेलते हैं, मैं उनके संग ताश खेलने लगा। उन्होंने पैसा लगा दिया, जुआ शुरू कर दिया। जुआ खेलते खेलते मैं करीब 67 रुपये हार गया। 150 में निकल गए 67 रुपीस, मैं हार गया। अब तो मेरी जान निकले, मैं बॉम्बे में रहूंगा कैसे। तो मैंने भगवान को कहा, याद किया। अब माता से मेरा कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं था, बस एक ही बार वहां गया था, उसने 48 दिन बोले थे। कृष्ण भी अब याद नहीं आ रहे थे, बहुत पुरानी बात हो गई थी। हे भगवान जो भी है तू, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पैसे वापस आ जाएं तो मैं जिंदगी में कभी जुआ नहीं खेलूंगा। ये डिटर्मिनेशंस होती हैं। और मैंने ऐसा कहा और अगली गेम में मैं 67 रुपीस जीत गया। मैं 67 रुपीस जीत गया। तब से मैंने जुआ खेलना एकदम छोड़ दिया। अभी यंग एज में जुआ खेलना छोड़ दिया। मेरे भुआ जी के लड़के और फूफा जी भुआ जी वो बॉम्बे में रहते हैं, मैं उन्हीं के यहाँ ठहरा था। तो जितने दिनों के लिए गया उससे ज्यादा दिन, 5-6 दिन और रुका मैं। रिश्तेदार थे मेरे, उनके संग घूम रहा था। जब मैं वापस आया और वापस आके अपनी कंपनी के ऑफिस में गया, तो जो मेरा इमीडिएट बॉस था वहां पे, मिस्टर पुरी थे, जोर से चिल्लाया मेरा नाम लेके। तो बॉम्बे गया था इंटरव्यू देने या हीरो बनने? मैंने कहा क्यों, इतने दिन क्यों लगा दिए? तो मैं भी गुस्से में बोला। मैंने कहा मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी नाम थी उसकी, मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का कोई इस समय एम्प्लॉय नहीं हूं। अपनी मर्जी से गया, अपनी मर्जी से आ गया। बोलते तुम मर्जी से नहीं गए थे, तुम इंटरव्यू देने गए थे। मैंने कहा तो क्या हुआ, तुम्हें मालूम है तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है? तो मैं हैरान, मेरे से पहले मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। कब आया है? कल आया था। मैंने अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लिया, दिन गिने। वो जो देवी ने कहा था और दिन गिने, इट वाज 48 डेज, 48वां दिन था जब मुझको वो लेटर मिला। अच्छा आप लोग भी बताओ, कोई हो गए तो क्या होगा? तो आंख मीच के भक्त बन ही जाएगा। तो मैं बचपन में कृष्ण के पास जाता था, फिर दुर्गा देवी का मैं क्या बन गया? भक्त बन गया। अच्छा खासा भक्त बन गया मैं। दुर्गा देवी के मंत्र पढ़ता था, साल में 2 बार मैं वैष्णो देवी जाता था, नवरात्रे वगैरह भी रखता था। लेकिन गुरुदेव अपना काम कर रहे थे। कहां से? केशव जी गोड़िया मठ, मथुरा से। मेरे दादाजी अपने जीवन के अच्छे खासे दुराचारी व्यक्ति थे। अब कहना नहीं चाहिए पर मैं कह रहा हूं। खाना पीना ऐशो आराम, जो मैं कविता में सुना रहा था, वो सब वो करते थे।
लेकिन उस उम्र में आके उनको एक कोई सिख गुरु मिला, उसके पास जाके उन्होंने सब शराब, मीट, अंडा सब कुछ छोड़ दिया। और तो और वो सिखों का एक जपजी साहब है वो, और भगवत गीता का उर्दू में अनुवाद, सुनना मेरी बात को, जपजी साहब सिखों का और भगवत गीता का उर्दू अनुवाद। वो सुबह 4 बजे उठे आते थे और उसका पाठ करते थे जोर जोर से, और मेरा और उनका कमरा एक ही था। मैं उसी कमरे में सोता था। जब वो गीता पढ़ते थे मैं सोया होता था, मेरे कान में जाती थी, तो एक लाइन उनकी मेरी कान में डेली घुसती थी, 2 लाइनें, और मैं आपको सुना रहा हूं क्योंकि वो उस समय में सुनता था और दिमाग में घुसी हुई थी। जो भूतों को पूजें वो भूतों को पाएं, जो सनम के पुजारी सनम को मिले और हमारे परस्ता हमको मिले। जो देवी देवता और भूतों की पूजा करते हैं वो उनको पाते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को जाते हैं, लेकिन मेरे भक्त जो हैं वो मेरे पास आते हैं। तो मैंने कहा मैं तो देवी की पूजा करता हूँ, तो मैं तो कृष्ण के पास से जा नहीं सकता। चलो नए नए भक्त आ रहे हैं मेरे लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घुस जाओ। काफी लंबी कहानी हो चुकी है, अभी चला रहा हूं मैं, सुनते जाओ थोड़ी, एक लिमिट पे आके। ना खौफ उसको आए ना गुस्सा कभी, ना जज्बों के जंजाल में आए वो, सही मायने में दाना कहलाए वो। मुझको उर्दू के कई शब्द अच्छी तरह से आते थे, मेरे पिताजी शेर व शायरी सुनाया करते थे। हरे कृष्णा। I am speaking in Hindi and he is translating for her. अभी इंग्लिश वाले और आ गए। अब ये लोग आए हैं, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ थोड़ा सा, ये सारा कवर नहीं होगा। I am telling my आत्मकथा, what you call biography, life story. No saintly person does it, and because I declare I am not saintly person, so I do it. I am telling all this thing because I feel that my whole life from childhood to today is remotely and closely controlled by Gurudev. First, I went to birthplace of Lord Krishna many times in childhood. That created Sukriti. Then I became Nastik. Then by the grace of Durga Devi, I got the job. And because of this reason, I became devotee of Durga Devi. Not only devotee, staunch devotee of Durga Devi. And then, because of my grandfather, he used to read Bhagavad Gita in Urdu daily, early in the morning. And would you believe, the whole Gita he used to repeat. Whole Gita. From
first adhyay to 18. And I used to listen it. Then I thought, Gita says, those who are devotee of demigods, those who are devotee of Pitra, Forefathers. eh? Forefathers. Pitra. Forefathers. Forefather, those who are devotee of Bhut, ghost, they will go to these places. Only my devotee will come to me. Only my devotee will come to me. So where will I go now? Where will I go? Then it was clear to me that I will not go to Krishna. So I brought Bhagavad Gita from market and I started reading Bhagavad Gita. When I was reading Bhagavad Gita, I found in Bhagavad Gita not only one place, chapters 9, different chapter, it clearly says, those who worship demigods, their worship is not perfect. Avidhi purvak. Avidhi means not in correct line. So they will not get any result. And I thought, but I am worshipping Devi. What will be the result? And it said, Bhagavad Gita, I was reading it, that everyone is Krishna's potency and no one is superior to Krishna. This something I could understand. I was not taking help of anyone. So as a result of this, I went to temple of Vaishno Devi. It is in Katra, near Katra in India. It is on the Himalayas. This time when I went to her temple and I said inside her temple, "Oh Durga Devi, I have read Bhagavad Gita. Now I want to worship your Lord Krishna, of whom you are potency. Please help me. And now I will not come here because I will worship Krishna." And I came back. But how will I worship Krishna? How will I worship Krishna? This was a big question. In order to learn how to worship Krishna, I read one book, Autobiography of a yogi. Paramahansa. When I read that book, it was Mayavadi. So I became Mayavadi. I gave up Durga Devi Puja and I became Mayavadi. Mayavadi says that Lord has no form. He is formless. We meditate upon Krishna. They say Krishna. We meditate upon Krishna so that we should transcend Krishna also. And we will go in the vacuum. No form. I became very, very, very staunch Mayavadi. What to do now? How to come out of this Mayavad? But I still feel that this thing was being controlled by Gurudev because I was doing everything not of my own. I was doing everything as if it was planted for me and I am doing it. I was inclined towards Krishna
but my thought was Mayavadi. But I did not know exactly what is Mayavad. Then what happened? A desire came in my heart. My father never gave any charity to anyone in life, and I still did not do the same. I should give some donation to Krishna. A thought came in my mind. I should give donation to Krishna. At that time, I was getting salary of 1,200 rupees per month only. But desire came that I should give 50, 60, 100 rupees to Krishna. I was in an insurance company. So I was having a friendly relation with my clients. To one of my clients, I said, Prabhu, how can I give charity to Krishna? He says, I tell you. I told, tell me. He says, my brother goes to a organization, they worship only Krishna. They don't worship anyone. I said, which organization? It is ISKCON. That organization is ISKCON. They worship only Krishna. Then I went to find out where is ISKCON in Delhi. ISKCON was in a small house, Koti, in Greater Kailash, M119, I remember. I went in the temple. When I went in the temple was closed, and there was a president of the temple. He was Canadian person. He started preaching me to become life member of ISKCON. I said, how much money? He said, 3,333 rupees. I said, do you know my salary? What is salary? 1,200 per month. So I have to give you my 3 months salary, then I will become your life member. He was very smart. He said, you do one thing. You take an installment. You give me only 500 rupees now and give me checks of 250 rupees, 12 or 14 checks. And you become member. Then you go anywhere in the world, you can live free. This was alluring. Go anywhere in the world and live there free. Very attractive. And by chance, I say that everything was planted in my life. The same day, I brought my full check book from the bank, and that was in my bag. So he said, yeah, give me 13 checks and one current check. I was hypnotized by him and I gave the check. When I gave the check, he did not make me member, but he gave me books of ISKCON. And in those books, there was Bhagavad Gita also. Now, I told you that I became Mayavadi. Now see, this is the thing to be understood very clearly. What is Mayavad and what is Vaishnava religion? Mayavad says, Aham Brahmasmi, मैं ही ब्रह्म हूं. I am abhin, part and parcel of Krishna. Abhin. What do you call in English abhin? Akhilesh? Non-different. Soul is non-different part and parcel of Krishna. This is Mayavad. So, I took Bhagavad Gita and I started reading Prabhupada's Bhagavad Gita, and Prabhupada says, soul is different part and parcel of Krishna. Soul is
different part and parcel of Krishna. I marked that line. Wrong. He said, wrong. That whole Gita, I made so many things in it. Wrong. This is wrong. This is wrong. I said, oh my God, where I have given the money? Where I have given the money? Eh? These people are saying we are different part and parcel of Krishna. They say we will not merge in him. They are rejecting liberation. What is this book? I become very much frustrated. So one of my check got bounced. You know, bounced, dishonored. I said, very good. It is bounced now. I will not become member. A young boy, about 19 years old, he came to get the money in my office. Adidev, he came that your check is bounced, you give money. I said, I will not give money because your theory is wrong. It says this. I was talking on my platform and he was talking on his platform. He was quoting again Bhagavatam, Bhagavatam, Bhagavatam. And I was reading during those days Satyarth Prakash, that is Arya Samaj book, and it says Bhagavat is a fake book. It is written by Bopadev. This Arya Samaji was saying like this. So I was having negative idea about Bhagavat. So I was saying, why are you quoting Bhagavat and Bhagavat again and again? So he could not convince me, I could not convince him. We kept on discussing 7 hours together, but without any result. But finally I gave him money. I said, he spent so much time with me, so let me give the money. And after 1 week, he rang me, Prabhuji, one bus is going to Vrindavan, will you come with me? And in that bus, there is no fees. We will discuss the things. He got prepared. Now he got prepared how to discuss with me. And I frankly tell you, 4 hours going to Vrindavan, 4 hours coming to Delhi, and there stayed. I did not do the darshan of temple also. Only discussion, discussion, discussion. And in this, about 12 hours continuous association with that boy, he smashed my Mayavad. Totally he smashed my mind. Because he says, if you are non-different part and parcel of Lord, then why do you cry? Why do you cry? So I gave him so many things, but he rejected my everything, and then I started believing, yes, that is true that we are part and parcel, but which? Different parts and parcel. Separate part and parcel of Krishna. That showed the Vaishnavism in my heart, and I was dragged towards ISKCON. I became very, very dedicated devotee in ISKCON. I met Pujpad Srila Gopal Krishna Maharaj, and he gave me mantra and all. So what happened, that I will tell you in Murvilamba. Because now I will be coming close to Gurudev. So far, everything was planned on me by Gurudev from distance. That is remote control. We are not knowing each other. But when I came in ISKCON, I learned so many things in ISKCON. ISKCON gave me so much high understanding, and I became very popular in ISKCON Delhi. I was giving 6 or 7 classes daily in different places from ISKCON. And in ISKCON, by grace of ISKCON, I could see Gurudev. So how did I meet him and how it happened, I will tell in
मुरबी लंबा। गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सस्पेंस कर दिया। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। एनी क्वेश्चन सस्पेंस हो गया, है? सस्पेंस क्रिएट कर दिया। है कोई क्वेश्चन? बोले आपने तो अपनी कहानी सुना दी, इस पे क्या क्वेश्चन पूछे जाए? हाँ बोलो। कौन से आप गौड़िया मठ कैसे चेंज किया? हैं? क्या बोला? कौन से गौड़िया गौड़िया मठ मठ में कैसे कैसे आए? आ गए? वही तो बताना है आगे। वही मुरबी लंबा। और वो पार्ट 2 Today I told you because of the remote control of Srila Gurudev, I became Vaishnava. I became separate part and parcel of Krishna. This came into my mind very strongly now, at that time also. And then how I came to with Gurudev, I will tell. And it is interesting. अब ये आप दिन नियुक्त कर लो कि किस दिन बताए जाए। संडे को ही बताना है या बीच में भी कोई दिन लेना है? तब संडे को आएंगे, इसमें तो नहीं है। तो ये संडे को बतलाऊंगा मैं, ठीक है? संडे आई विल टेल माई रेस्ट लाइफ एंड यू लिसन इट। संडे जरूर आना, गुरुदेव का अपीयरेंस डे। एंड आई रिक्वेस्ट मुरबी लंबा टेम्पल, they will allow me to speak. Allow? ठीक है? No question? Can you recite more poems? More poems? मेरी कविता और सुनाओ। कविता सुननी है एक दो? तो वेट करो। Give me this much time. Now he will explain. I will take some kavita. गुरुदेव की व्यास पूजा हवाई में हो रही थी। कहाँ हो रही थी? हवाई में। तो मैंने दिल्ली में बैठकर उनके लिए एक छोटी सी कविता लिखी थी, और जिस जगह में हो रही थी उस जगह का नाम था कोने। हवाई में उस जगह का नाम था समथिंग लाइक कोने। तो हवाई के कोने से, कोने के एक कोने से, हवाई के कोने से, कोने के एक कोने से शुभ दृष्टि डली नीली अखियों के कोने से। गुरुदेव की आंखें कैसी थी? नीली, और उसके कोने से थे। हवाई के कोने से, कोने के एक कोने से शुभ दृष्टि डली नीली अखियों के कोने से। कृष्ण प्रेम की लहर दौड़ी दुनिया के कोने कोने से। उस दृष्टि से क्या हुआ? कृष्ण प्रेम की लहर दौड़ी दुनिया के कोने कोने से, मिली निजात सबको संसारिक रोने धोने से। मिली निजात, निजात मैंने इनको बता दो, इनको भी थोड़ा सा बता देना। निजात सबको संसारी रोने धोने से, हुआ ये जीव राजा जी के करीब जिनके चरण धोने से। जब कृत कृत हुआ जिनके आज होने से, ऐसे गुरुदेव के चरण पड़ों में खींचो मुझे संसारी कोने से। अब गुरुदेव को प्रार्थना, संसारी कोने से। ए मौनी अमावस्या के चांद, अमावस्या में चांद नहीं होता, लेकिन गुरुदेव कौन है? मौनी अमावस्या। ए मौनी अमावस्या के चांद, मुझे दो निजात अविद्या के अंधकार ढोने से। अब देर ना करो गुरुदेव, मेरे हृदय में
सुमंगला रति होने से। अब देर ना करो गुरुदेव, मेरे हृदय में सुमंगला रति होने से। मंगल श्री गुरु गोरा मंगल मूर्ति, मंगल श्री राधा कृष्ण युगल प्रीति, वो क्या है, शुभ दृष्टि करो प्रभु जगतेर प्रति, जागुक हृदय मोरे सुमंगला रति। वही मांग है। मैं अब देर ना करो गुरुदेव, मेरे हृदय में सुमंगला रति होने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं हुआ। प्रभु जी अगर इसको ट्रांसलेट कर भी देंगे, इसको कोई रस नहीं मिलेगा। जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, वो हिंदी के इन शब्दों में ही अपना एक वो है जंकार है ना। नहीं होगा ये, तो मुझे एक हफ्ता लगेगा इसको ट्रांसलेट करने में। ठीक है, हैं? चलो हो गया, बहुत हो गया, अब टाइम भी बहुत हो गया, 1:30 बज गया। क्या करना है? कीर्तन करेंगे? हैं? हाँ हाँ करो करो। मृदंग आया है जी, लेके आए हैं। माइक दे दो, स्टैंड में दो ना। Oh yeah.
Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, I'll just tell you another story just like Prabhuji did. This is when Prabhuji came first time to Australia, 11 years back. I was taking him to Muralamba. And on the way we stayed at Madhuri's and Nan's place. We had lunch there. And then in the evening we went to Muralamba. Next day, I think the same day. Same night, Radhe was born. And we rushed off from Muralamba, we came here. After 2-3 days, we lost touch with Prabhuji. He didn't know where we were because we didn't tell him anything and we came back to his own house. So Radhe was born on the day Prabhuji was here at Madhuri's place. The day he went to Muralamba, same night he was admitted to the hospital and gave birth to Radhe, regular Buddha's right now. She had Sadhu Sangha arranged
Straight after the birth. because I did program in their house, na? I think. No, not that. Eh? No, yes. Karuna was in New Zealand. She was in New Zealand. But this is children of the devotee family. That is why she is singing such nice bhajan. Very good. महाप्रसाद की हरे कृष्णा। अब मैं बंद करने जा रहा हूँ। काफी लोग आए हैं पर मैं नाम नहीं पढ़ रहा अभी।